So, we were discussing in lecture 13 the various histological procedures, and we had talked about the Nissl stain, the Golgi-Cox, the fluorescence stains, and these sound very technical, and they are. But look at what they give us. A picture of the neurons, their connections, their projections, the cellsomas, the chemical compositions, and so on and so forth. Let me give you an idea of how do some of these pictures look like. One of these pictures is showing you the Golgi stain. If you look here, you can see the Golgi stain. Look very closely, and you can see that some of the body's cells are so clearly, they stand out. You can see the cell body here, the cell body is here, but there are some areas where the cells did not stain. But the cells that stained are so beautifully, clearly projected. You can see this is the cell, and these are projections going up and connecting with other cells. And these are again some cells which have been stained. And this is a good way of identifying various cells. There are, of course, other cell stains that we have seen and we have talked about. We have talked about the Nissl staining. And the Nissl stain here, you can see these little red dots. Actually, there are blue dots. And these dots are the cell bodies. But you don't see anything else. And compare it what you just saw, the Golgi staining. Interesting, because you see these little cell bodies. And they're splattered all over. And so it gives us an idea that these are where the cell bodies are more densely located, more heavily populated. Then you have another stain, very interesting. And this is used in conjunction with the Nissl stain. This is the Weil stain, which stains only the cell projections, the fibers. So you can see it looks so different. It looks different because there are no cell bodies here. It's only the fiber systems. And you can see the darkest area is where the longest fibers and the thickest fibers are. So if you use this stain along with the Nissl stain, you get to have an idea that these are the cell bodies and these are the cell projections. I would also go and show you one of the very interesting dyes, the fluorescence. The red dye was injected and you can see the fluorescence here. And you can see the cells are fluorescing beautifully. Do you see the fluorescence? So this is another way in which cells show up the fluorescent dye. And so we have seen 3 or 4 pictures. One more interesting picture, because this is a larger picture. You will see this. And this is again a Golgi-Cox, but beautifully done, where the cell is showing up. And you can see the cell axon and dendrites, and exquisitely done, as if you have painted this picture. But this is paint by histochemistry. Okay, so we were talking about, before we ended the lecture 13, we were talking about the stereotaxic atlas and the stereotaxic instrument. And of course, with this, I show you the picture of the stereotaxic. The first picture that you see on the top is the stereotaxic atlas. And you can see a brain slice. And you can see the measurements on both sides and all sides. And these measurements are what give you an estimate: anterior, posterior, dorsal, ventral, medial, lateral, the 3 dimensions. And they go this way, and of course, ventrally. And of course, underneath you can see a rat. In the stereotaxic instrument, you can see the ears are plugged, fixed, the mouth is fixed, the head is fixed, and you can see, if you look very closely, you can see the bregma and the lambda. The sutures, वो निशान हैं आपके, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि ये इस ब्रेन के हिस्से में जाने, और एटलस लैम्डा और ब्रेगमा को लैंडमार्क बना के ही बनी गई है. और नीचे अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये है
एक्चुअली इलेक्ट्रोड उसकी ब्रेन में डाल दिया गया है। अब ये ब्रेन में जब इलेक्ट्रोड डाल दिया और फिक्स हो गया, इसको कैप सी टोपी से पहना दिए। अब ये जिस तरह आप कोई टोपी पहन के फिरता रहता है और टोपी का पता नहीं चलता, एहसास नहीं होता टोपी पहनी हुई, इसी तरह से इस चूहे को भी एहसास नहीं होगा कि टोपी पहनी हुई है उसने। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज रेपर्टोयर एंड इट स्टेज विद हिम। चाहे आप महीनों इसके साथ काम करें, ये इसकी टोपी इसके साथ ही चिपकी रहेगी, डेंटल सीमेंट से फिक्स हुई हुई है इसकी। Now that you have seen how electrodes are fixed in the rat brain, let me just talk about how we use electrical stimulation. Stimulation is electrical, which I just showed you, but stimulation is also chemical, which we'll talk about. And there is another interesting way of stimulating the brain using the push-pull cannula, and I'm going to talk about it, each one of this in detail. Electrical stimulation using, there are many ways. One of them is the bipolar electrode. The bipolar electrode, of course, as the name implies, has two poles. The bipolar is used to stimulate, measure the electrical charge and behavior at the same time. So, the bipolar electrode is an electrode which has two poles, of course, for the electrical charge, and it stimulates the brain, and we can use the same electrode to measure the changes in the brain as we go along. How has bipolar electrode been used? Bipolar electrode has been an immensely useful technique. I'll give you two examples. And one of the techniques that has been used, and it is a discovery that was made, is the self-stimulation. वो आपने देखा कि रैट की ब्रेन में इलेक्ट्रोड इम्प्लांट हो गया, इलेक्ट्रोड इम्प्लांट हुआ है और किस साइट पे इम्प्लांट हुआ? रिवॉर्ड साइट्स पे। ब्रेन के अंदर रिवॉर्ड साइट्स भी हैं which give you pleasure. So what does this rat do? जब इलेक्ट्रिकल चार्ज वहां रिवॉर्ड साइट पे दिया जाता है और वो चार्ज पल्सेट करता है उस एरिया को, उसको अराउज करता है, द रैट फील्स द रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड की फीलिंग होती है, रीइंफोर्स, एक्सट्रीम प्लेजर। ह्यूमंस में भी उन्होंने करके देखा और ह्यूमंस ने डिस्क्राइब किया, इट इज अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर। इमेजिन, रैट को इलेक्ट्रोड जब दिया है और उसके सामने लीवर है, इट कैन प्रेस दैट लीवर and put that electrical charge into its brain itself. अब ये मैंने कई दफा देखा है, rats forego food, forego water, forego everything, they'll starve to death, but only want that pleasure of that lever that is bringing electrical charge to the reward system. So this was a discovery. This was done in the 50s. And it became a major hit. Self-stimulation studies are used frequently using the rat brain electrical stimulation. इसी तरह से जब मैंने आपको बताया कि बैलेंस और वॉक और गेट के लिए, आपको चलने के लिए बैलेंस की जरूरत है। इम्बैलेंस हो जाए तो आप ऐसे हो जाते हैं ना, चलना हो तो आप जरा टेढ़ा होकर चलें तो गिर जाएंगे आप, राइट? ये बैलेंस कैसे मेंटेन होता है? by the two areas of the bilateral brain, इसमें बेसल गैंग्लिया में, जो दोनों की स्टिमुलेशन बराबर होती है। अगर एक की स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाए तो आप जो है ना वो टेढ़े हो जाते हैं। और ये this has been done and I have done this experiments where I stimulated the brain to create an imbalance, and so wherever the imbalance is, the animal turns on that side. और इसका जब इलेक्ट्रिकल चार्ज और ज्यादा कर दे और ज्यादा कर दे और ज्यादा, क्या होगा? एनिमल टर्न करने लग जाएगा या गिर जाएगा, राइट? और यही हुआ। सो वी हैव यूज्ड दिस इन सेल्फ स्टिमुलेशन, वी हैव यूज्ड इन यूनिलैटरल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, एंड वी हैव यूज्ड दिस इन स्टडीइंग पार्किंसंस बिहेवियर एंड इवन एग्रेशन। बहुत स्टडीज हुई हैं वेयर अ कैट इज सिटिंग पीसफुली, लेकिन इलेक्ट्रोड डाला हुआ उसके अग्रेसिव ब्रेन के एरिया में, एमिगडाला में। When amygdala is stimulated, the cat goes into a big rage. बिल्ली को आपने देखा जब उसको गुस्सा चढ़ता तो
बाल खड़े हो जाते हैं, दुम यूं खड़ी हो जाती है और वो फिर स्पिटिंग करती है. And that is the kind of rage that can be incited by just stimulating the brain. So, electrical stimulation has been very effective in identifying various neuroanatomical sites and their relationship to behavior. इसी तरह hungry animals start eating even if खाना उनको पसंद नहीं है और उनके सामने खाना वो रखा है जो ये नहीं खाएंगे, लेकिन if their brain is stimulated they start eating, जो नॉर्मली वो चीज नहीं खाते. या बिल्कुल सेटेड है, पेट भरा हुआ है, उसके बाद वो खाते नहीं. एनिमल्स डू नो व्हेन टू स्टॉप. देयर ब्रेन सिग्नल्स देम टू स्टॉप. सो इफ यू स्टिमुलेट दैट ब्रेन एरिया व्हिच सिग्नल्स फीडिंग, यू स्टार्ट ईटिंग. एंड दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा in the feeding studies has shown that as well. Interestingly, in humans, the motor homunculus क्या है? आपकी मोटर मूवमेंट्स का एक मैप है ब्रेन में कि किस जगह से ये उंगली हिलेगी, किस जगह से ये अंगूठा हिलेगा, किस जगह से ये हाथ हिलेगा, किस जगह से मैं अपनी गर्दन हिलाऊंगी. ये homunculus मैप बना हुआ है 1 to 1. बड़ा इंटरेस्टिंग. और इसको पहली दफा रॉजर पेनफील्ड ने यूजिंग द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ही मैप्ड आउट द मोटर homunculus in the living brain. So, this was one very good way of identifying electrical stimulation, of identifying and fixing behaviors within the neuroanatomical sites. Electrical stimulation is also used prior to surgery. Stimulate करके देखते हैं, जैसे ट्यूमर निकालना है तो स्टिमुलेट करके देखते हैं कि कौन कौन से behaviors इस ट्यूमर के नीचे हैं जो affect होंगे, so that the surgeon knows how much to cut and what to anticipate. ये electrical stimulation जो humans में होती है और animals की research का आपको होता है. What does the response on electrical stimulation depend upon? जाहिर है कि electrical charge की response कैसी होगी? पहली बात, जिस साइट पे आप electrical charge दे रहे हैं, जिस जगह पे, जिस न्यूरो एनाटॉमिकल लोकेशन पे आप चार्ज दे रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन. अंडरस्टैंडेबल. दूसरी कि जितना करंट आप देंगे, अगर थोड़ा वीक करंट देंगे तो रिस्पॉन्स और तरह की होगी, और अगर इंक्रीज करते जाएंगे करंट की लेवल तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स चेंज होती जाएगी. सो the site is important and the response depends on the site, the neuroanatomical location. The current is important, the intensity of the current and the intensity of the charge. Now why intensity of the charge is important? सोचो, कुछ समझ में आया? Of course, चार्ज ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा आप चार्ज देंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी ना, बढ़ेगा. इसके अंदर एक और बात भी है. वो बात ये है कि अगर चार्ज सिर्फ इसको, अगर ये एक जगह है लोकेशन और चार्ज यहाँ दिया जा रहा है, थोड़ा चार्ज है तो यही रहेगा ना. लेकिन अगर ज्यादा इंटेंस चार्ज है तो वो जो न्यूरॉन्स की वो कनेक्शंस देखे हैं गोल्जी पिक्चर्स में कि वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो जितना ज्यादा चार्ज ज्यादा होगा वो साथ वाले न्यूरॉन्स को भी टच करेंगे. फिर साथ वाले न्यूरॉन्स की एक्टिविटी फिर जो है हम मेजर कर रहे होंगे अगर ज्यादा इंटेंस होगा करंट. सो देन द लोकेशन एरिया एनहांसेस विद द इंटेंसिटी एंड ऑफ कोर्स द टाइम ऑफ द करंट. अगर करंट छोटी दौरानिया के लिए है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी बिहेवियर की इंटेंसिटी और होगी, रिस्पॉन्स और होगी. लेकिन अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है तो उसकी इंटेंसिटी और होगी. सो साइट, करंट, चार्ज, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द करंट is what the response of the electrical stimulation is dependent on. इसी तरह से ये तो ग्रॉस इलेक्ट्रोड्स है, माइक्रो इलेक्ट्रोड भी होते हैं और माइक्रो इलेक्ट्रोड्स
बहुत सिंगल न्यूरॉन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए होते हैं। एक न्यूरॉन के लिए एक इलेक्ट्रोड, और इसे बड़ी सारी रिसर्चेस हुई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च जो मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे भी इसकी तस्वीर। एक रैट की मोटर एरिया में इलेक्ट्रोड एक सेल में डला हुआ है, और वो सेल अगर यहाँ से चीज इधर को आती है और हाथ उठा के यहाँ से पकड़ने लगता है तो वो सेल फायर करता है और उसकी आवाज आती है। एम्पलीफाई किया उस आवाज को, जैसे आपकी बिजली की कड़कड़ होती है ना, इस तरह से। और अगर इधर से लाते हैं एक्सपेरिमेंटर्स कोई चीज तो वो सेल फायर नहीं करता। इतने माइक्रो इलेक्ट्रोड की स्टडीज भी हुई है, और ये है रिजोलाटी, इटालियन, उसने बहुत इस पे मोटर न्यूरॉन्स पे काम किया हुआ। फिर तीसरा जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में आता है, दैट इज नोन एज माइक्रो iontophoresis. What is this? It is the response. This is the presynaptic area, this is the postsynaptic. यहाँ करंट आया, इधर को गया, तो ये प्री हो जाता है, ये पोस्ट हो जाता है, ऑब्वियसली एक पहले एक बाद में। सो प्री और पोस्ट में हम आहिस्ता से जब देखते हैं कि ये न्यूरॉन्स मूव कर रहे हैं और इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलता है क्या एक्टिविटी हो रही है? इसको पता करने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये डबल बैरल पाइपेट है। सो एक ग्लास की पाइपेट है, सो दो बैरल्स एक दूसरे के अंदर है। आप इमेजिन करें जिस तरह से एक जो स्ट्रॉ है उसके अंदर एक बारीक स्ट्रॉ आप डालें, ये दो पतले पतले स्ट्रॉज जो हैं एक ग्लास में आप डाल रहे हैं। एक स्ट्रॉ जरा बारीक है और उसके ऊपर आपने कवर किया मोटे स्ट्रॉ से। एक दफा बच्चे ऐसे करते हैं कोक पीते वक्त, राइट? सो दिस इज द डबल बैरल्ड पाइपेट दैट इज यूज्ड, एंड द टिप ऑफ द इनर पाइपेट हैज, इट कंटेन्स सेलीन। वो ब्लैंक है और उसमें सेलीन है, और वो सेलीन आप ब्रेन में उस जगह पे एंटर करते हो, पंप करते हो सेलीन, एंड द सेलीन व्हेन इट एंटर्स it brings about some changes, and then you measure those changes using an electrode which is placed in the other pipette. So you are running a voltage weak current which is passed, and then you measure the changes and bring out the materials to measure what are the changes, metabolites जो वहां पैदा हुए, आयोन्स जो वहां मूव अराउंड किए, वो कैसे थे, उनको बाहर लाके आप स्टडी करें। सो इट स्टिमुलेट्स द न्यूरोनल एंडिंग यूजिंग द इनसाइड ऑफ द पाइपेट, द डिस्चार्ज which is pulled out for analysis, and it is checked for whether it is an excitatory postsynaptic potential or an inhibitory postsynaptic potential. दोनों की रिएक्शंस फर्क होती है। तो हम ये मालूम करना चाहेंगे कि ये EPSPs था, एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल, या IPSPs, इनहिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक। पोस्टसिनेप्टिक जो दूसरे न्यूरॉन को जाके हमने उसको चलते फिरते को रोक दिया, या रुका हुआ था तो उसका चलना शुरू कर दिया, उसकी एक्टिविटी शुरू हो गई। तो ये दोनों चीजें कैसे? थ्रू द माइक्रो आयोंटोफोरेसिस मेथड। डबल बैरल पाइपेट, सेलिन डाला, वोल्टेज पास की, और फिर पुल आउट करके उसकी मेटाबोलाइट्स और आयंस को देखा। फोर्थ मेथड जो है इसमें वो है केमिकल स्टिमुलेशन। अब केमिकल स्टिमुलेशन कैसे हो सकती है? केमिकल स्टिमुलेशन भी हो सकती है, ये ही डबल बैरल पाइपेट किस्म की चीज इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोड्स वी यूज थिन ग्लास ट्यूब्स, वेरी माइक्रो फिलामेंट वाली ग्लास ट्यूब्स है, एंड दीज आर व्हाट वी कॉल द ग्लास cannula. The glass cannula is used to insert chemicals. जिस तरह इलेक्ट्रोड उस साइड पे जाता है, इसी तरह ये पाइपेट बिल्कुल उसी पॉइंट पे जिस लोकेशन में हम इंटरेस्टेड हैं जाती है, और फिर उसमें से हम केमिकल्स पंप करते हैं इनटू
that location. And when we pump those chemicals into that, and we know what we are doing, हमें पता है हमने डोपामीन से रिलेटेड केमिकल्स डालने हैं, या हमने नोरेपिनेफ्रिन, या हमने जो भी केमिकल्स डालने हैं, हमें मालूम है हमने कितने डालने हैं और कहाँ डालने हैं और क्या उसका रिएक्शन हम एंटीसिपेट कर रहे हैं. So we push and pull to insert and immediately draw out metabolites to analyze the activity and the neurotransmitter that are involved. We can measure the stimulation of the neurotransmitter. We can measure the inhibition of behavior by using appropriate chemicals and appropriate cannulas. बहुत अच्छा ये टेक्निक है, लेकिन जाहिर है अब तक आप समझ गए होंगे कि ये टेक्निक्स इस्तेमाल करने के लिए यू हैव टू बी एन एक्सट्रीमली ट्रेन्ड साइंटिस्ट, एंड यू हैव टू नो द सब्जेक्ट यू आर वर्किंग विद, एंड यू हैव टू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द ब्रेन एज वेल एज द केमिकल्स दैट यू आर वर्किंग विद. तो अच्छा टेक्नीशियन, अच्छा साइंटिस्ट और अच्छे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो के उसके प्रोफेसर के साथ पीएचडी कर रहे हैं ताकि वो काम कर सके, और ये होता ही है. लेबोरेटरीज में आप देखिए तो इसी तरह पुश पुल कैन्यूला भी हो रही है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, फिर इन सारी स्टडीज को मिला के एक थ्योरी बनती है और एविडेंस पेश की जाती है. अब इसी में हम आगे चलते हैं तो एक और मेथड है. अभी तक तो ये ब्रेन को हमने डैमेज किया, स्टिमुलेट किया, लेकिन इसको डेड नहीं किया, डिजेनरेट नहीं किया, राइट? अब आती है दूसरी जो ग्रुप ऑफ स्टडीज हैं और टेक्निक्स हैं, वो कहलाती हैं इनएक्टिवेटिंग. पहली वाली स्टिमुलेटिंग थी ना, ये इनएक्टिवेटिंग है टेक्निक्स. इनएक्टिवेटिंग टेक्निक्स जो कि लीजन करती हैं. लीजन क्या होता है? जख्म, डैमेज करना, चोट लगाना, राइट? सो लीजनिंग इज डन to destroy certain parts of the brain, and when we do that then we can study कि अगर ये ब्रेन का हिस्सा यहां से ये निकाला गया है या डैमेज हुआ है तो सब्सिक्वेंट बिहेवियर्स कौन से अफेक्ट हुए. बहुत लॉजिकल है और बहुत टेक्निकल है, बिकॉज डैमेज मीन्स इट्स almost, there are some techniques which are irreversible damage. There are very few techniques which are irreversible, and there are quite a few that damage forever, and there are one or two techniques which are reversible techniques. अच्छा जी, irreversible पे आइए. irreversible में पहली टेक्निक है सक्शन या एस्पिरेशन. सक्शन मीन्स कोक जब ग्लास में से पीते हैं तो क्या कर रहे हैं? एस्पिरेट कर रहे होते हैं ना, सक कर रहे होते हैं कोक को, राइट? सो सक्शन एंड एस्पिरेशन इज पुलिंग आउट द ब्रेन टिश्यू, एंड द ब्रेन टिश्यू इज सॉफ्ट सो इट कैन बी पुल्ड आउट. दूसरा है डैमेजिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स इनटू द ब्रेन. लोकलाइज्ड बहुत छोटी जगह पे रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हम इंसर्ट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, और वो वेव्स उसको डिस्ट्रॉय करती है रीजन को. तीसरा है नाइफ कट्स. बहुत बारीक नाइफ्स हैं जिससे हम ब्रेन के एरिया को डैमेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई माइट कट दिस एरिया, बाकी आगे पीछे के एरियाज रह जाते हैं, लेकिन व्हेन आई इंसर्ट a cut, I can cut a specific site that I am interested in. इसके अलावा एक और जो है वो इंटरेस्टिंग रिवर्सिबल इंटरेस्टिंग, ये तीन जो अभी तक मैंने आपको बताया ये इरिवर्सिबल है. नाइफ कट के बाद दोबारा ब्रेन दोबारा जुड़ती नहीं. इसी तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के बाद डैमेज होने के बाद, बर्न होने के बाद वो सेल्स दोबारा नहीं आते, जनरेट नहीं होते. इसी तरह से सक्शन और ब्रेन टिश्यू निकालने के बाद ब्रेन टिश्यू दोबारा वहां पर नहीं आता. क्रायोजेनिक फ्रीज एक ऐसा है
या एनेस्थेटिक कंपाउंड जो कि अगर इंसर्ट किया जाए तो जितनी देर तक क्रायोजेनिक फ्रीज जो है वो ब्रेन के उस एरिया को फ्रीज कर देता है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। जब वो फ्रीज कर देता है तो उसके साथ जो रिलेटेड बिहेवियर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, समझे कि पैरालाइज हो। बट दिस इज रिवर्सिबल। जब ये वार्म अप होता है और वहां से फ्रीज जो है डिफ्रीज होता है वो एरिया, उसके बाद वो दोबारा से एक्टिविटी रीजनरेट हो जाती है। इसी तरह से एनेस्थेटिक कंपाउंड जब इंजेक्ट किया जाता है तो जितनी देर वो एनेस्थेटिक एक्टिविटी रहती है, एक्टिव एनेस्थेटिक, वो एरिया काम नहीं करेगा ब्रेन का। हम उतनी देर उसको स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से बिहेवियर जो हैं वो इफेक्ट हुए। उसके बाद जब एनेस्थेटिक कंपाउंड वेयर ऑफ होता है, एक्सक्रीट होना शुरू होता है ब्रेन से, तो वो वापस बिहेवियर दोबारा आ जाते हैं। सो रिवर्सिबल है। और इसके साथ लीजनिंग और भी है जिसको जो अगेन रिवर्सिबल नहीं है, वो है इलेक्ट्रिकल लीजनिंग या केमिकल लीजनिंग। और ये दोनों आगे यूनिलैटरल भी हो सकते हैं यानी एक साइड पे, और बायलैटरल भी हो सकते हैं यानी दोनों साइड ब्रेन के सेक्शंस को आप डिस्ट्रॉय करते हैं। जाहिर है कि यूनिलैटरल के अपने बेनिफिट्स हैं, बायलैटरल के अपने। Inactivating the brain means that you are removing that part of the brain or reducing the activity of that part of the brain that you are interested in so that you can study the behaviors that were related to it or are absent because of the damage to this area. पहला जो था वो था suction और aspiration. This is basically ablating. We are ablating the brain to remove a major part of it, and we do it through suction and aspiration, which means एक thin pipette हम डालते हैं और brain tissue को suck up कर लेते हैं बिल्कुल specific site से through a glass pipette. This needs extreme precision and it is a difficult process because you need to go through the thick brain tissue. वो जो ड्यूरामीटर वगैरह आपको याद है, मैंने बताया था शुरू में कि कवरिंग होती है ब्रेन। सो लोअर एरियाज में जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए इससे गुजरना होता है। और ये ब्रेन तो टिश्यू नरम है लेकिन जो कवरिंग है वो थिकर है। सो समटाइम द वाइट मैटर इज थिकर एंड इट डज नॉट अलाउ, रेजिस्टेंस होती है फॉर द पाइपेट टू गो इनटू द लोअर एरिया। सो पहली बात प्रिसीजन चाहिए। You might aspirate more than you thought you needed to. Accidents do happen. So मेरे हिसाब से aspiration is quite accident prone. So बहुत precision, बहुत skillful hand चाहिए सर्जन का to do the aspirating procedures. दूसरा है radio frequency lesions. Radio frequency lesions are actually alternating high frequency current, which is ये जो टिप है इलेक्ट्रोड की, इससे इंसर्ट किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी करंट। एंड इसकी जो हीट है जो यहाँ से जनरेट होती है वो हीट डिस्ट्रॉय करती है ब्रेन के टिश्यू को। एंड दिस इज, एज आई सेड बिफोर, एन इरिवर्सिबल डैमेज। नाउ व्हाट डज दिस, ये व्हाट डज दिस डिपेंड ऑन? फर्स्ट ऑफ ऑल, द साइज ऑफ द टिप that is bringing the heat, the current and the heat. अगर टिप बड़ी होगी तो करंट ज्यादा एरिया बर्न होगा। टिप अगर बहुत बारीक होगी, ऑब्वियसली लॉजिकली कम एरिया डैमेज होगा। नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ द करंट। याद है पहले भी मैंने आपसे कहा था, इंटेंसिटी ऑफ द करंट, जितना इंटेंस करंट होगा उतने ज्यादा जगह बर्न होगी, जितना कम वीक करंट होगा उतनी थोड़ी जगह बर्न होगी। सो यू नो एग्जैक्टली हाउ मच करंट टू गिव। देन द ड्यूरेशन ऑफ द करंट, कितनी देर के लिए, अगर आपने 1 मिली सेकेंड के लिए दिया उसका असर और होगा, एक आपने 5 मिली सेकेंड के लिए दिया उसका असर और होगा क्योंकि वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। और इसका कोई करंट वो अगर आप 20 मिली सेकेंड के लिए देते हैं तो उसका असर वाइडर होगा।
So it is more intense and it will cover a wider area. Then the area of the brain in which you are passing the electrode. But you must remember कई areas ऐसे हैं जिनकी connectivities बहुत ज़्यादा है. So they will be affecting the larger number of areas. एक और बात इसमें जो सोचने की है कि ये आपने भी सोचा कि इलेक्ट्रोड अगर मैं पास करती हूँ और वो जो आपने देखा है रैट की ब्रेन में इलेक्ट्रोड नीचे तक जा रहा है, तो ये सवाल आपने सोचा है, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ. आपने सवाल क्या सोचा? आपने सवाल ये सोचा है कि इलेक्ट्रोड डालते वक्त नहीं ब्रेन डैमेज हुआ, नीचे तक जाते जाते यहाँ से मैं जब ब्रेन के अंदर जा रही हूँ तो ये जिधर एरियाज हैं ये भी तो डैमेज हुए होंगे, सिर्फ नीचे वाला तो नहीं डैमेज हुआ. ऐसा नहीं होता क्योंकि बाकी सारा इंसुलेटेड है. दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोड गया है उसके इर्द, क्योंकि वो काफी देर रहता है, इर्द गिर्द जो है ना वो अपनी जगह बना लेता है, एंड इट डज पास थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ एरियाज, बट since it is insulated, it does not pass the current into these areas. It leaves the overlying areas unharmed. So now your question has been answered, and it is that we just are very localized into the specific area that we are interested in. फिर टेक्निक है नाइफ कट्स की. नाइफ कट्स जो हैं they are basically weak, जिस तरह छुरी है लेकिन बहुत बारीक और very thin knives which are used to cut sections of the brain while the brain is alive and still working. And these knife cuts section to damage connections or isolate areas that we are interested in. Again, there are very fine and precision knife cuts that are made. और ये सवाल आपने भी पूछा है, अगर ये कनेक्टेड था और मैंने यहाँ से नाइफ कट से इसको लैदा किया, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, राइट? व्हाट अबाउट दिस? दिस हैज आल्सो बीन डैमेज्ड इन द प्रोसेस. सो नाइफ कट्स, इवन दो दे आर अ गुड टेक्निक and is very frequently used, but what about the remaining areas and what about the adjoining areas that have been damaged by the knife cut? So this is a question which then people, the scientists usually use electrodes. Very seldom do scientists go for knife cuts because knife cuts are difficult to localize and difficult to do precisely. And of course, these are irreversible. Once the damage is done, then you go look for another rat that you want to work with. बहुत मुश्किल होता है. Then you have the reversible, which is the cryogenic freeze. You freeze the area that you are interested in with a cryoprobe. And what is a cryoprobe? A cryoprobe is a glass tube which carries a freezing, जैसे नाइट्रोजन आइस है, कूलेंट इंसर्ट करते हैं और वो इंसर्ट करने से वो एरिया जो है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है. एंड देन देयरफॉर द एरिया डज नॉट फंक्शन, द बिहेवियर व्हिच इज रिलेटेड टू दिस एरिया डज नॉट फंक्शन एज वेल. वो बिहेवियर एब्सेंट हो जाता है, इट्स गॉन. सो यू कैन रिलेट बिफोर एंड आफ्टर. पहले क्या था बिहेवियर, फिर हमने फ्रीज किया तो बिहेवियर क्या था, फिर अनफ्रीज हुआ तो उसके बाद बिहेवियर क्या था. सो बिहेवियर रिटर्न्स एंड फंक्शनिंग रिटर्न्स व्हेन द ब्रेन एरिया बिकम्स वार्म एंड व्हेन द क्रायोजेनिक फ्रीजिंग इफेक्ट्स डू आर रिवर्स्ड. रिवर्सिबल फ्रीजिंग जो है, रिवर्सिबल टेक्निक दूसरी जो है एनेस्थेटिक्स की है, और ये मैंने पहले भी बताया कि ये यूज किया जाता है. And it is similar when the effects of anesthetic wear off, the brain function returns to normal. Now let's come to the lesioning, which is irreversible. There are several kinds of lesioning.
One is the electrolytic. As the name implies, using the electrical charge and electrical current to degenerate or damage or lesion a very specific brain site. We pass a high frequency direct electrical current into the area through the electrode and damage the area through electrolysis. इसका ये फायदा है इलेक्ट्रिकल लीजन का कि बहुत फोकस्ड है. We know exactly where we are and we know exactly the kind of lesioning that we are going to be doing. So it is minimal and it's very focused, and therefore it is very frequently used. And of course, later histological studies will tell us whether we were in the right place, because verification comes from histologies. Then comes the chemical lesioning. Chemical lesioning is the lesioning where we use selective chemical substances which will damage the brain. और आपको माइक्रोपाइपेट याद है? उस माइक्रोपाइपेट को जो कि बिल्कुल उस ब्रेन एरिया में स्टीरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डाली गई, और उस पाइपेट के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं वो केमिकल्स जो कि डेंजरस केमिकल्स हैं. डेंजरस का मतलब टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज करेंगे. सो वी सिलेक्ट न्यूरोटॉक्सिक्स, दे डोंट डैमेज द रेस्ट ऑफ द ब्रेन. बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है. इट इज टेकन अप सिलेक्टिवली. न्यूरो डिजेनरेटिव सब्सटेंसेस और न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंसेस इंजेक्ट करते हैं हम. एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि डोपामीन के लिए बड़े स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक टॉक्सिक है जिसका नाम है 6-हाइड्रोक्सी डोपामीन. वो मिलता जुलता है डोपामीन से, लेकिन डोपामीन के जो न्यूरोट्रांसमिटर जो न्यूरॉन्स हैं वो धोखे में आ जाते हैं. ये हमने इंसर्ट किया और ये इस न्यूरॉन ने ये समझ के कि ये डोपामीन आ रही है, जैसे स्पाइस नहीं होते, दोस्त बन के आप दुश्मनों के उसमें चले जाएं स्पाई बन के, और अब वहां जाके फिर जाके उनका घर लूटें सूटें. ये बिल्कुल इसी तरह से 6-हाइड्रोक्सी डोपामीन दोस्त के रूप में, molecule is similar to that of dopamine, so the neuron thinks it is dopamine, it takes it up. As soon as it enters the neuron, it kills the neuron, and it kills the neuron और उसकी प्रोसेसेस सारी खत्म हो जाती. जितने जितने डोपामीन के न्यूरॉन्स में ये जाती है वो सारे मरते जाते हैं. And this is an irreversible damage. And this has been used to study the Parkinson's behavior and the Parkinson's syndrome by degenerating specifically the dopaminergic neurons. तो इसके फायदे भी हैं इस केमिकल लीजनिंग के, क्योंकि हम बड़ी स्पेसिफिकली करते हैं, इसके हमें नजर आते हैं 1-to-1 असरात. एक बात इन दोनों और बाकी लीजनिंग टेक्निक्स की कि unless you have histological verification, you cannot claim कि हम उस साइट में गए थे. इसका एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है, और वो मैं एग्जांपल ये देती हूँ कि एटलस का अंदाजा करके क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका ढूंढने चला था, इंडिया ढूंढने चला था, और कहाँ पहुंच गया? अमेरिका, वो दूसरा कॉन्टिनेंट में. सो कई दफा एटलस से इतनी बड़ी गलती तो नहीं हम करते ब्रेन साइंटिस्ट, लेकिन गलतियां हो सकती हैं, एस्टिमेशन है ना ये. सो उसको वेरीफाई करने की जरूरत है कि जो बिहेवियर आपको नजर आया क्या वाकई वो उन्हीं एरियाज में था जिन एरियाज में आप जाना चाह रहे थे. हाइपोथैलेमस है या थैलेमस है, मेडुला है, जो भी एरिया आप उसमें जाना चाह रहे थे, क्या आप वाकई में उसमें गए हैं? ओनली हिस्टोलॉजी विल टेल, ओनली द सेल स्टेनिंग विल टेल यू ब्रेन सेल्स की कि आप वाकई में वहां गए. तो पहला तो इसका एक ये शॉर्टकमिंग है.
दूसरी शॉर्टकमिंग ये है कि आप जब बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे हैं लीजन करने के बाद, लीजन जो है वो इतना स्पेसिफिक नहीं है। ये ब्रेन में लिख लें कि एडजेसेंट एरियाज, जो नेबरिंग एरियाज है, वो भी अफेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इलेक्ट्रिकल चार्ज, मैसिव इलेक्ट्रिकल चार्ज देके वो एरिया डैमेज किया, जख्म आता है ना, चोट लगती है ना, कट होता है ना, कट तो एक जगह नजर आता है, लेकिन कट के एक जगह भी दुखती है ना, है ना। बिल्कुल इसी तरह से ब्रेन टिश्यू भी, नेबरिंग टिश्यू जो है वो भी अफेक्ट होता है। सो नेबरिंग टिश्यू, क्या वो बिहेवियर जो हमें नजर आ रहा है, क्या वो नेबरिंग टिश्यू की इरिटेशन की वजह से था? क्या उस बिहेवियर को हम कह सकते हैं कि सिर्फ लीजन की वजह से था? ये एक थोड़ी सी कंफाउंडिंग होती है, and there is a question which keeps coming back again and again, that can you really say that this behavior was only due to the lesioning? So what we do is continue these studies, and consistently जब ये studies होती हैं तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वाकई में it is that area, but the irritation factor of the adjacent neurons is never ruled out. Then let's go on into another series of lesioning, and I remember telling you कि आपको बताया था, एक होता है unilateral. Unilateral lesion means एक तरफ, ब्रेन बायलैटरल है ना, ये आपको अंदाजा है कि जो स्ट्रक्चर्स लेफ्ट साइड पे हैं वही स्ट्रक्चर्स राइट साइड पे हैं, सो ब्रेन इज कंप्लीटली लाइक अ मिरर, टू साइड्स। सो अगर हम एक हिस्से में लीजन करते हैं और दूसरे में नहीं, दिस इज यूनिलैटरल। तो हम सिर्फ इस ब्रेन हिस्से का जो असर है, डैमेज है, इसको हम देखना चाहेंगे। क्यों देखना चाहते हैं? सोचें, एक तरफ डैमेज करने से क्या हमें मिलेगा? सही जवाब, कंपैरिजन नजर आ रहा है ना, इसका और इसका, ये इंटैक्ट है और ये डैमेज्ड है। So there is a comparison which is possible if you do a unilateral lesion. We have control. The one side which is not lesion is a control, and one side which is lesion is the experimental side. But how do you know कि behavior जो मुझे नजर आया और जो असर मुझे नजर आया, it's difficult to sieve out and separate out the effects. It is not very clean. So what people do is do the bilateral. Bilateral means similar on both sides. Areas are damaged, so you have a complete picture. Both sides, therefore, the effect is more intense. The difficulties of interpretation, whether it is unilateral, bilateral, chemical lesion, electrical lesion, is, first of all, I've told you, irritation of the neighboring neurons. उनका भी तो असर है जो आपको बिहेवियर में नजर आ रहा है। दूसरी बात, when you talk about the brain, remember the brain is highly adaptable and highly flexible. जो चेंजेस आती जाती है, रोजाना के रोजाना आपके न्यूरॉन्स हंड्रेड्स में मर रहे हैं, थाउजेंड्स में, डाइंग ऑफ। रोजाना के रोजाना आप नई चीजें सीख रहे हैं, राइट? सो देयर इज, द ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग, देयर इज एन अडेप्टेबिलिटी इन द ब्रेन। सो एक ब्रेन एरिया डैमेज होता है तो उसके नेबरिंग एरियाज उसके फंक्शंस उठा लेते हैं, दे पिक अप दोस एरिया। सो ड्यू टू दिस अडेप्टेशन, हाउ फार कैन यू से कि जो बिहेवियर मैंने लीजन के बाद देखा वो उसी का था, या नेबरिंग न्यूरॉन्स ने जो पिक कर लिए हैं, अडेप्ट कर लिए टू द चेंज, उनका था। Which means the changes that we are measuring after the lesions, are these really the changes that have taken place in the brain? Or are we measuring a lot of other things? So it's not very
clean, but it's a good procedure. And of course, students who are doing masters and their PhDs do go through these techniques and learn these techniques, because at one point or the other that you do pick up these and use them. I have used lesioning, I have used chemical lesioning, I have used electrical stimulation, I have used histologies, and I tell you, one works with the other. And sometimes if you're working with 100 animals, there is a consistent pattern that you will see. So we have so far talked about the stimulation studies and the lesioning techniques. In the lesioning techniques, we had the irreversible lesioning techniques, and we had the reversible lesioning techniques. And we also had our reservations as to that these may not be so effective, and there are shortcomings of each one of these techniques which we cover with the using the other. So I can use stimulation first, and then after I've done the stimulation studies, I can use the same electrode to damage the brain and then use it for the lesioning studies. Classic. Now we move on to electrophysiological methods. Electrophysiological methods, again, there are several. There are invasive and there are non-invasive. Invasive is where you enter the brain, or non-invasive where you don't enter the brain but record. Now, remember what is electrophysiological? Obviously, the current, the charge that you can measure from within the brain. And each neuron has the electrical charge. A neuron has a charge when it is resting. A neuron has a charge when it is activated. And when a large number of neurons are activated, they give out a certain amount of charge which we can measure. So individual charges we measure कर सकते हैं, और हम gross charges group of neurons का भी कर सकते हैं, और फिर total brain की electrical activity भी measure कर सकते हैं, record कर सकते हैं. पहले में आते हैं invasive. वो है single microelectrode. Inserting a single microelectrode, and I've already talked about it, but let me elaborate again a little in detail. Then there is the gross electrode. ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा neurons को assess करने के लिए. And then there is EEG in humans, where we do not insert electrodes, but we measure electrical activity. Single microelectrode क्या है? Single microelectrode recording is, of course, one single neuron which is about 5 to 10 micromolar. इतना छोटा. तो microelectrode जो कि 1 to 3 micromolar, बहुत छोटा, बारीक सा. This is a glass tubing which is inserted, or steel pens. These are inserted into the neuron, and we record the potential or the charge of the electrical discharge of that particular neuron. हमें ये एक्टिविटी ऑल और नन है, या न्यूरॉन फायर करेगा या नहीं करेगा. जब वो फायर करेगा तो हम उसकी एक्टिविटी को माइक्रो इलेक्ट्रोड के तहत मेजर करेंगे, और फिर ऑसिलोस्कोप पे उसकी एक्टिविटी दिखाई भी देगी और मेजर भी होगी. नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो इलेक्ट्रोड डूइंग फॉर अस? ये सिंगल स्टिमुलस, सिंगल न्यूरोनल फायरिंग रिकॉर्ड कर रहा है. और इसमें मैंने आपको रिजोलाटी की एक्सपेरिमेंट्स, मोटर बिहेवियर के, यहाँ से पकड़ रहा है मंकी, या यहाँ से पकड़ रहा है, या यहाँ से ले रहा है, या इस तरह पकड़ रहा है, या इस तरह ले रहा है, किस तरह की, जिस तरह की मूवमेंट होती थी, सिंगल सेल वुड रिस्पॉन्ड टू इट. और इसमें आपको याद होगा, मैंने एक्सपेरिमेंट्स आपको शुरू में बताए थे, ह्यूबल एंड वीजल के विजुअल एक्सपेरिमेंट्स, वेयर वन सिंगल विजुअल न्यूरॉन विल फायर. अगर एक लाइट यूं टिक टिक कर रही है, एक जगह एक डॉट, उसको एक न्यूरॉन फायर करेगा. उन्होंने देखा कि विजुअल फील्ड में किस जगह रिस्पॉन्ड करते हैं.
या एक लाइन है लाइट की, उसको न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ दे हैव मैप्ड आउट द विजुअल कॉर्टेक्स, एंड दिस कैन बी इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर. रिकॉर्डिंग इंट्रासेल्युलर भी हो सकती है सेल की बॉडी के अंदर से, और एक्स्ट्रासेल्युलर के मतलब सेल के बाहर से. सो एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस में रिकॉर्डिंग हो सकती है, इंट्रासेल्युलर स्पेस में रिकॉर्डिंग हो सकती है. बट दिस इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्निक, बट वेरी इफेक्टिव, एंड इट्स नॉट इजी टू डू. दूसरी जो एक्टिविटी है वो ग्रॉस इलेक्ट्रोड्स की है. और ग्रॉस इलेक्ट्रोड्स जहां लार्ज न्यूरॉन्स और लार्जर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आप लेते हैं, टिप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड इज लार्जर, बड़ी है, एंड व्हाट वी डू इज measure what we call evoked potentials, EPs, evoked potential. यानी कि अगर मैंने किसी चीज को अटेंड किया है तो where is this cell firing and what is that group of cells which is firing, that recording can be done. या साउंड सुना है तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में से evoked potentials रिकॉर्ड किए जा सकते हैं. So many neurons firing in an area can be recorded. You hear a loud sound and the neurons fire together. और इतनी ये साइंटिफिक है कि there is a typical evoked potential which is measured and there is a typical averaged evoked potential which is measured and consistently measured. वो चेंज नहीं होती, EP नहीं चेंज होती और एवरेज evoked potential नहीं चेंज होता. एक EP 500 या 300 depends on the area that you're working in. So ये हैं आपके माइक्रो इलेक्ट्रोड और ग्रॉस इलेक्ट्रोड. दोनों इन्वेसिव टेक्निक्स हैं और दोनों यूज की गई हैं टू मैप हाउ न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई, एंड द electrical activity of the neurons is recorded and it can be shown and amplified. Evoked potentials में तो actually you can see how you respond to, even in humans, how you respond to various stimuli. ये तो थे दोनों invasive techniques. इसके बाद है EEG, electroencephalography, and this is measured using the scalp electrodes. The electrodes are placed at various points on the scalp. This is not invasive, so अंदर नहीं जाते. Electrodes ये different sites पे हैं, temples हैं, parietal है, आपकी occipital है, इन सब को आप इस्तेमाल करते हैं, and we will talk about this in the next lecture. But ये बहुत common procedure है to measure electrical activity which is non-invasive in the human brain as well. So now you're half a neuroscientist, right? किताब पढ़िए, तस्वीरें देखिए, समझिए. You go to the textbook, read the handouts, because it's going to get more technical. We are going to get into more psychology, but that is also very technical psychology of how we're going to use these paradigms. So, lecture 14, text में देखिए, handouts पे पढ़िए, and do read the neurosciences websites as well.